Hello, my dear students. How are you? I hope you all are enjoying. So today I'm going to discuss about computer system, chapter 1, class 11th, IP. So let's see what you will learn in this chapter. You will learn in this chapter introductions to computer system, evolution of computer, computer memory and software. So I'll start this chapter with the good quotes of Alan Turing, as he told that a computer deserves to be called intelligent if it could deceive a human into believing that it was a human. Means that कि कंप्यूटर उस दिन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट महसूस होगा जब लोगों को ये महसूस हो जाए कि वो भी एक आदमी जैसा ही है. So let's try to understand first thing what is computer system. A computer is an electronic device that can be programmed to accept data, input, process it, generate result, output. Means what? It is an electronic device. Computer is an electronic device. The first thing you have to remember that computer is an electronic device. What is the meaning of the electronic device here? Electronic means that's work with the help of the electric circuit, electric currents, and that's having a circuit there. Means that systems having a board on that there are so many components are there, transistor, resistor, IC. So such types of circuits are there. So that circuit is called electronic circuit. So that's why it is called electronic device. That can be programmed. Program means you can give the instructions with the help of the program. Program is a collection of instruction, and whenever so many programs get collected, it becomes the software. So it's a program in that way you can give instructions to them. You can give the instructions to them. Okay. To accept data means your computer is capable to receive some input, receive some data, and after receiving it process the data. It's process the data, and at last it's give the result. It's give the output. So that is called computer. That is called computer system. Okay. A computer along with additional hardware means computer along with the additional hardware and software. Means there is some additional hardware and software systems that merge together. Means hardware is the separate component, software is the separate components that merge together to form the computer system. As I told you, through which device you will get the input. So definitely you would need a hardware device, that is the input device, and through which device you will get the output. Definitely again a hardware device is there, that is the output device, monitor. But how the computer will receive the input, store the data in a computer memory, and the CPU will start processing according as in a proper way to give the proper result. These all things get controlled by the software. Okay, so that is the software. A computer system primarily comprises of a central processing unit, memory, input-output devices, and storage devices. What is the meaning of this? Means if you look at the computer systems, you can easily say that what are the different components of computer system. Then you come to know it's having a CPU, that the main processing unit, memory unit, it's having the memory where the data is stored for the time being for the processing purpose. Now it's required input output device, through that you can give the data to the computer, and through that you can receive the result by the computer. And one more device is there, that is called a storage device. That is a permanent storage, like your hard disk, like your CD, like your pen drive. So these are the storage device. All these components has to work together to make a single unit to deliver the desired output. Means these all the components, either CPU, input output system, memory, and storage, these all things are work together to form the one unit. And why they works together? So that they can meet the requirement, so that they can give the output. Getting my point? A computer system comes in the various forms and size.
That you know it's coming in the different size, in a form of the smartphone, that is the very small, in the form of the tab, bigger than a smartphone, in the form of the laptop, it is bigger than a smart tab, then desktop like this way, then supercomputer, mainframe, mini, these all are the different types of the computer. So it comes in a different seven size. It can vary from a high-end server to personal desktop. Laptop, tablet, computer or a smartphone means it can be of different size like this. It can be of high-end server, personal desktop, a smartphone, tablet. So these are the devices possible, means a big size and a small size. Like this, look at this figure. If you look at this figure carefully, then you can understand this is the block diagram of computer system. There are some lines which is showing with the direct line. It shows the flow of the data, flow of the signals between the components. Like this, I'm going to finish this today's topic with this concept only. So you just try to understand what is this block diagram. This block diagram is actually telling about the different components of computer system. Look at this. This is the input device and this is the output device. Okay, so these two devices are the outside. But whenever you look on look at this parts. This whole box form the CPU. This is called CPU. Okay, this is called CPU, and CPU stands for Central Processing Unit. So CPUs having the three different units. One is called control unit, another is called arithmetic and logic unit, and next is the primary memory. And outside the CPU there is one more unit that is called storage device. Getting my point? So these are the different units are here. Now these all units having their own responsibilities. Whenever you are giving the anything, any data, any instruction, any command through input device, this information first moves to the primary memory. But how it's moved to the primary memory? Your control unit is giving the instructions to the input device to transfer the data given by the user, or the instructions given by the user, to the primary memory, and as well as primary memory also get the same instruction. You can easily understand. Look at this. This line is showing that the interactions is going in between CPU and memory continuously. Okay, and later on what happened, that the information is stored, the same information is passed to the ALU for further processing. That is the arithmetic and logical unit. Processing means some calculations, maybe arithmetical, maybe logical, and again the result is going to store in a primary memory. But if the instruction is that save this information on the permanent storage, so now the CPU, or you can say the control unit, is going to interact with the secondary storage. It's going to interact with the secondary storage, and at last it's give the output if it is required, and it is given in the command you have to give the output also. So it's going on the output device. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आज हम सीपीयू के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये एंटायर सिस्टम जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इस पूरे रेक्टेंगल्स को अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड सीपीयू. और एक सीपीयू के अंदर में प्राइमरी मेमोरी होती है, कंट्रोल यूनिट होते हैं, और एक अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं. तो हम इन सब के बारे में समझेंगे कि भाई आखिर ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, या क्या क्या प्राइमरी मेमोरी हैं. इन सब के बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं. देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट इट्स इज कॉल्ड सीपीयू. नॉर्मली क्या है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. आपका जो कंप्यूटर अगर आप देखोगे तो बीच में आपके पास एक डब्बा दिखाई देता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं नॉर्मली. और अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप देखोगे इसके अंदर में भी एक मदरबोर्ड, एक सर्किट बोर्ड लगा होता है, एंड दैट सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड मदरबोर्ड. क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर्स हो या आईसीज हो या चिप्स हो, वो सारे के सारे उसी के ऊपर होते हैं. आपके रैम का भी सर्किट उसी पे होता है, रोम का भी सर्किट उसी पे होता है, तो वो सारी चीज उसके ऊपर होते हैं. तो ये क्या है, सीपीयू क्या है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ऑफ ए कंप्यूटर.
ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द एक्चुअल प्रोसेसिंग। जो एक्चुअल प्रोसेसिंग होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोसेसिंग, तो ये एक्चुअल प्रोसेसिंग इसके अंदर ही होता है, और बिकॉज इट्स डूइंग द एक्चुअल प्रोसेसिंग सो इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, इसको सीपीयू को, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर, एंड इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। तो प्रोसेसर का मतलब क्या है? अ डिवाइस विच इज कैपेबल टू डू सम प्रोसेसिंग, अ डिवाइस विच इज कैपेबल टू डू सम प्रोसेसिंग। तो वो डिवाइस जो कुछ प्रोसेसिंग करेगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं, ठीक है। फिजिकली सीपीयू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रोचिप्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो होते हैं सीपीयू, जो एक्चुअल माइक्रो प्रोसेसर हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। द आईसीज कंप्राइजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, उसके अंदर में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लगा होता है। अब देखो सीपीयू काम कैसे करता है। होता क्या है कि सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। एक्चुअली सीपीयू को आप क्या देते हो? दो चीज देते हो, एक तो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, दूसरा आप उसको डेटा देते हो। कैसे देते हो? थ्रू प्रोग्राम्स। किसके थ्रू देते हैं? थ्रू प्रोग्राम्स। मैंने कल ही बताया था कि प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है, और वो प्रोग्राम को कई सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, और वही सीपीयू के अंदर इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, और उसके थ्रू सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलता है। सीपीयू क्या करता है? जैसे कि आपने सीपीयू को क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया, आपने सीपीयू को डेटा दिया, ठीक है। तो आपने इतना चीज तो सीपीयू को दे दिया, ओके। उसके बाद सीपीयू क्या करेगा? उसको फेच करता है, प्रोग्राम को वो फेच करता है, ठीक है, एंड डेटा फ्रॉम द मेमोरी, डेटा फ्रॉम द मेमोरी, एंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। देखो उसने क्या किया? फेचेस द प्रोग्राम्स एंड डेटा मेमोरी से। अब मेमोरी की बात आ गई तो यहां पे समझ लो इस बात को, जो आपने इनपुट किया था, जो आपने इनपुट किया था, वो इनपुट जाता है मेमोरी के पास, ठीक है, और उसी मेमोरी में आपका डेटा भी जाएगा और आपका इंस्ट्रक्शन भी जाएगा। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि आप इनपुट दोनों ही चीज करते हो, आप डेटा भी देते हो, इंस्ट्रक्शन भी देते हो। उस इंस्ट्रक्शंस को और उस डेटा को सीपीयू क्या करता है? मेमोरी से फेच करता है। फेच का मतलब हो गया एक्सेस करना, रिट्राइव करता है, लेता है, ठीक है। और फर्दर क्या करेगा? लेने के बाद वो क्या करेगा? उसके ऊपर ऑपरेशंस करेगा। कौन सा ऑपरेशंस करेगा? उसके ऊपर ऑपरेशंस करेगा। जो दो ऑपरेशंस होंगे, एक होंगे अर्थमेटिक और दूसरा होगा लॉजिकल। दो ऑपरेशंस होगा, कौन सा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल। अर्थमेटिक का मतलब हो गया, देखो डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शंस है ये, कि इंस्ट्रक्शंस कैसा आपने दिया था। इंस्ट्रक्शंस के बेस पे अगर आपने प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ ऐसे ऑपरेशंस करवाने हैं तो अर्थमेटिक हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसे ऑपरेशंस जहां पे आप एनालिसिस कर रहे हो, जहां पे आप कंपेरिजन कर रहे हो, जहां पे आपको चेकिंग कर रहे हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, समथिंग लाइक दिस, अगर आप कुछ कर रहे हो तो वहां पे वो आपको रिजल्ट जो देगा वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में देगा। समझ मेरी बात को? तो ये काम कौन कर रहा है? आपका सीपीयू। और सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को लेके ये ट्रांसफर कर देगा किसको? अब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस जो है सीपीयू के अंदर करने के लिए एक अलग से यूनिट होता है, उस यूनिट को एलयू कहते हैं, आगे बता रहा हूं, ठीक है। तो वो अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा, और किसके बेसिस पे करेगा? तो वो इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे करेगा। डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रक्शंस क्या किया जाता है, और फर्दर जो रिजल्ट होगा वो वापस कंप्यूटर की मेमोरी को दे देगा, वापस कंप्यूटर की मेमोरी को दे देगा। कौन सी मेमोरी को दे देगा? इस वाले प्राइमरी मेमोरी को देगा। किस मेमोरी को? प्राइमरी मेमोरी को दे देगा वो उस रिजल्ट्स को, ठीक है। अब देखो जो ये प्रोसेसिंग हो रहा था, व्हाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन द लोकल मेमोरी। जब सीपीयू काम कर रहा होता है तो वो क्या करता है? टेम्पोरली इन सारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को वो अपने प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, अपने लोकल मेमोरी में स्टोर कर लेता है। अब देखो सीपीयू के पास भी एक अपना मेमोरी होता है, सीपीयू के पास भी एक अपना मेमोरी होता है, और मेमोरी हायरार्की में वो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। मैं आपको मेमोरी हायरार्की बता दूं, सबसे लोएस्ट स्पीड पे तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपका आता है, उससे ऊपर चलोगे तो रैम, रोम की बात आ जाएगी, प्राइमरी मेमोरी आता है, उससे ऊपर चलोगे तो कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी का काम क्या होता है? इंटरमीडिएट इंस्ट्रक्शंस को रखने का काम करता है वो, या मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू के पास जाता है ना, वो कैश के थ्रू जा रहा होता है। बट सीपीयू को खुद के लिए भी एक मेमोरी चाहिए, उसके खुद के पास मेमोरी चाहिए, जहां पे वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस या डेटा को स्टोर करके रखता है, और उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं?
रजिस्टर्स कहते हैं। तो रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर्स इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप्स एंड दे आर लिमिटेड इन साइज। रजिस्टर जो होता है वो सीपीयू का पार्ट होता है, अनलिमिटेड साइज एंड नंबर होता है, बहुत ज्यादा उसके पास नहीं होता है इंफॉर्मेशन, है ना। डिपेंड करता है कि प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से लिमिटेड इंस्ट्रक्शन ही या लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसके पास, उतना ही डेटा स्टोर कर सकता है। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा। अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करने के काम में, इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के काम में और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के काम में आते हैं। इसके अलावा, रजिस्टर्स के अलावा सीपीयू के पास, सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। रजिस्टर के साथ साथ इसके पास इसके दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और दो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? एक कंपोनेंट्स है जिसको हम एएलयू कहते हैं और दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम सीयू कहते हैं। एक कंपोनेंट आपका हो गया एएलयू और दूसरा कंपोनेंट क्या है आपका? सीयू। एएलयू का मतलब हो गया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड सीयू का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट। अब देखो कंट्रोल यूनिट आखिर इसका नाम क्यों हुआ, जरा सा ये समझने की जरूरत है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? कंट्रोल्स करेगा सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस को। जितने भी इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन होने वाला है, जो भी इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेट्स होगा, उन सबको कौन कंट्रोल करेगा? आपका कंट्रोल यूनिट। डेटा के फ्लो को भी कौन कंट्रोल करेगा? आपका कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन कब जाएगा, वहां से इंफॉर्मेशन कब उठ के आएगा, इनपुट डिवाइस से डेटा कब इनपुट होगा, आउटपुट डिवाइस के पास आउटपुट कब जाएगा, है ना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं, सारे जो फ्लो होते हैं, चाहे इंस्ट्रक्शंस का फ्लो हो, डेटा का फ्लो हो, रिजल्ट का फ्लो हो, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो, सिग्नल्स का फ्लो हो, ये सारे फ्लो या डिवाइस का आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, इंटर डिवाइस कम्युनिकेशन जो हो रहा होता है, इन सबको कंट्रोल आपका कंट्रोल यूनिट ही कर रहा होता है। अब अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो कैलकुलेशंस के लिए एक स्पेशल यूनिट है हमारे पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका काम है इंस्ट्रक्शंस के बेस पे अर्थमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। वो अर्थमेटिकल मैंने अभी आपको बता दिया, अर्थमेटिकल का मतलब हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिकल का मतलब हो गया लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इस इंस्ट्रक्शंस को वो प्रोसेस करता है, ठीक है। तो CU controls the sequential, ALU performs the all arithmetic and logical operations that need to be done as per the instructions, and CU controls sequential instruction executions, interprets instructions, गाइड्स द डेटा फ्लो। जो डेटा फ्लो है उसको भी गाइड करता है, कंप्यूटर्स मेमोरी में कब जाएगा, ALU के पास कब जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास कब जाएगा, ये सारी प्रोसेसिंग आपका कौन कर रहा होता है, सारे कंट्रोलिंग कौन कर रहा होता है? CU। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? CPU। और CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। CPU को ही हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि कंप्यूटर सिस्टम्स के 5 मेन यूनिट्स होते हैं। एक हमारा इनपुट यूनिट होता है, एक हमारा आउटपुट यूनिट होता है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर में मेमोरी यूनिट भी होते हैं, कंट्रोल यूनिट भी होते हैं, ALU भी होते हैं। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट का काम क्या है? इनपुट यूनिट जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल्स होता है डेटा इनपुट लेने के लिए या इंस्ट्रक्शन इनपुट लेने के लिए। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी पीपल आर टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी। तो इफ यू वांट टू गिव एनीथिंग, जनरली you want to give in a English language or you want to give in a Hindi language. And let's see, if right now I am giving something to you and I am speaking in Hindi as well as English also. So यहाँ क्या हो रहा है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इनपुट आपको क्या इंग्लिश और हिंदी में मिलता है। आपका जो कान है वो इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है, वो उसको लेके इंटरप्रेट कर रहा है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके फिर आपको ट्रांसलेट करके समझा रहा है। तो हमारी अपनी एक भाषा है, हमें हिंदी इंग्लिश की भाषा समझ में आती है, इसलिए हमारा ब्रेन उसको इजीली कैचअप कर ले रहा है। लेकिन जब आप कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब वो एक मशीन है, एंड इट कैन अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। उसे सिर्फ 0-1 समझ में आता है। क्यों 0-1 क्यों समझ में आता है? 0-1 को हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, और इसलिए कंप्यूटर्स की जो स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट है वो बिट होती है। मतलब मेजरेबल यूनिट के फॉर्म में अगर देखो तो बाइट है, बट ऐसे हम उसे बिट कहते हैं, ठीक है। तो वो बिट का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ 0 and 1। तो क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर में, ऑल इंफॉर्मेशंस आर कन्वर्टेड इनटू द 0 and 1। तो इनपुट यूनिट, जो मेन इनपुट यूनिट की ड्यूटी है वो 3 होते हैं। फर्स्ट, कोई चीज आपसे रिसीव करना। सेकंड, उसको मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। और थर्ड, कंप्यूटर को ट्रांसफर कर देना, मतलब CPU को दे देना। CPU का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट को ट्रांसफर कर देना,
ठीक है। अब ये इनपुट यूनिट के अंदर में कुछ डिवाइसेज आते हैं एंड द डिवाइस विच हेल्प अस टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर सिस्टम, चाहे वो डिवाइस कुछ भी हो, such a device is called input devices. A device which help us, which helps you to put the data, to give the data, to input the data to the computer system, that is called input device. Okay. अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, एक बेसिक 4 फिगर हैं यहाँ पे एंड दिस आर द इनपुट डिवाइस, ये आपके इनपुट डिवाइस के फिगर है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, ओके। तो इन डिवाइस पे ध्यान दे दीजिए कि दीज आर द इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइसेस का अब यहाँ पे डेफिनेशन है, जरा सा मैं उसको पढ़ दूं आपके लिए। द डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज इनपुट डिवाइसेस, मीन्स अ डिवाइस थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स। अब देखो ये कंट्रोल सिग्नल्स का मतलब क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस की बात हम कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हो, मीन्स यू आर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस टू start the my computer, you are giving the instructions to start the Google Chrome, you are giving the instruction to start the Microsoft Word। तो ये इंस्ट्रक्शन आप कैसे दे रहे हो कंप्यूटर को? तो जनरली वी आर यूजिंग द माउस। अगर हम लैपटॉप की बात, मोबाइल की बात कर ले तो वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स, वी आर टचिंग द स्क्रीन एंड थ्रू द टच स्क्रीन वी आर गिविंग द इनपुट, ठीक है। तो कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंट टू ए कंप्यूटर आर टर्म एज द इनपुट डिवाइस एंड दिस डिवाइस कन्वर्ट। अब देखो इस डिवाइस का काम क्या है, ये कन्वर्ट भी करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये कन्वर्ट क्या कर रहा है, इट्स कन्वर्ट द इनपुट डेटा इनटू ए डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेसिबल बाय कंप्यूटर सिस्टम। मतलब इनपुट डेटा को, ये इनपुट डेटा को कन्वर्ट करेगा किस फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म। एंड डिजिटल फॉर्म का मतलब होता है 0 एंड 1। डिजिटल फॉर्म मतलब वो डिजिटल फॉर्म जो एक्सेप्टेबल है किसके थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है। तो उसे हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो समझ में आ गया कि इनपुट डिवाइस का क्या काम है। इनपुट डिवाइस इज रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव, टू गिव द कंट्रोल सिग्नल्स, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द गिवन वैल्यू, गिवन डेटा, गिवन इंस्ट्रक्शंस इन अ मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करेगा, मतलब डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा जो कंप्यूटर समझ सकता है। अब आपके पास कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस हैं, जरा सा उसको देख लीजिए। उसमें आता है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, माइक, OCR, MICR, तो कई तरह के इनपुट डिवाइसेज हैं। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड आपका सबसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है, जिस डिवाइसेस के थ्रू आप टेक्सचुअल डेटा इनपुट कर सकते हैं, आप नंबर इनपुट कर सकते हैं, आप अल्फाबेट इनपुट कर सकते हैं। मीन्स इफ यू हैव टू टाइप समथिंग, देखो इनपुट का मतलब हो गया टाइपिंग करने की बात भी मैं कर रहा हूं। आपको अगर कुछ टाइप करना है, कुछ डेटा देना है, तो दैट इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड। माउस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इसे हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जिसके थ्रू आप माउस को मूव करते हो। तो देखो एक माउस पॉइंटर आपके स्क्रीन पे मूव हो रहा होता है, वहां पे एक पॉइंटर होता है एरो शेप में, इस शेप का आपका पॉइंटर होता है जिसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। तो इसके थ्रू आप किसी भी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो, कहीं पे क्लिक कर सकते हो, कहीं। तो देयर आर 3 बटन्स इन अ माउस, लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड मिड बटन। मिड बटन को हम स्क्रॉल बटन के नाम से जानते हैं, दैट इज यूज्ड टू स्क्रॉल। स्कैनर की अगर बात करें तो स्कैनर इज ऑल्सो डिवाइस थ्रू विच यू कैन स्कैन। मीन्स समथिंग इज ऑन योर पेज एंड यू वांट टू इनपुट द सेम पेज टू द कंप्यूटर सिस्टम, देन यू नीड टू बी स्कैन। कोई अगर पेज पे कुछ लिखा हुआ है, कोई इमेज बना हुआ है और पूरे की पूरी इमेज को बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आप कंप्यूटर को इनपुट देना चाहते हो, तो आपको यहां पे स्कैनर की जरूरत होती है, ठीक है। टच स्क्रीन मीन्स विद द हेल्प ऑफ द फिंगर। एटीएम मशीन में जाओ, पैसे निकालना होता है तो आप क्या करते हो, आप टच करते हो, आप ऑप्शंस को टच करके देते हो। आप अपने मोबाइल को देख लो, स्मार्टफोन को देख लो, किसी और मशीन या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल फोन से भी आप देख सकते हो। तो आप इनपुट कैसे देते हो, टच करके देते हो, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, ठीक है। कुछ स्पेशली कीवर्ड भी अवेलेबल है जिसको ब्रेली कीवर्ड कहते हैं, डिसेबल्स पर्सन के लिए, विजुअली इंपेयर्ड पर्सन के लिए। कंप्यूटर में डेटा द कमांड थ्रू वॉइस ऑल्सो, और वॉइस से भी आप सर्च कर सकते हो। आप अपने मोबाइल पे गूगल सर्च में जाके आप वॉइस से भी कमांड दे सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब। डेटा एंटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। अब होता क्या है कि जो डेटा आप इनपुट करोगे वो डेटा कहाँ जाएगा। तो मैंने आपको पीछे ब्लॉक डायग्राम में समझाया था कि वॉट एवर यूर इनपुट, दैट इनपुटेड इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली ट्रांसफर्स टू द प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो है वो इनपुट डिवाइस को भी इंस्ट्रक्शन देता है और मेमोरी को भी इंस्ट्रक्शन देता है।
कि नाउ मेमोरी को इंस्ट्रक्शन क्या देगा कि भाई आपको कुछ डेटा मिलने वाला है, और इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन क्या देगा कि आपने जो इनपुट किया वो वहां ट्रांसफर कर दो, तो वो वहीं ट्रांसफर होगा। तो टेम्पोरली कहाँ स्टोर होता है? वो टेम्पोरली स्टोर होता है मेन मेमोरी में। कौन सी मेमोरी में? मेन मेमोरी में। और मेन मेमोरी को हम क्या कहते हैं? रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज के लिए डेटा को कहां भेजना होगा? परमानेंट स्टोरेज में भेजना होगा, जिसको आप सेकेंडरी मेमोरी कहते हो। कौन सा मेमोरी कहते हो? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क आता है, आपका पेन ड्राइव आता है, आपका सीडी आता है। दिस ऑल डिवाइसेज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द इनपुट डिवाइस। नाउ मूव ऑन द आउटपुट डिवाइस। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो चलो देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस, द डिवाइस व्हिच इज रिस्पांसिबल टू गिव द आउटपुट टू यू। मीन्स आप अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो आप आउटपुट कैसे लेते हो? नॉर्मली आप या तो मॉनिटर से ले लेते हो, या आप प्रिंटर से ले लेते हो, या आप स्पीकर से ले लेते हो। समझ मेरी बात को? या तो आप सुन के लेते हो आउटपुट, या तो आप देख के लेते हो। और देख के लेने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होता है कि या तो हम मॉनिटर को यूज करते हैं या हम प्रिंटर को यूज करते हैं। तो कहता है द डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम and display on the computer memory or print is that device is called output device. Just like a input device, output device की भी कुछ जिम्मेदारी है। मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस के पास तीन काम होते हैं। आपसे इनपुट लेना, उसे मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और उसे मशीन को देना। आउटपुट डिवाइस के भी तीन काम होते हैं। सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेना, रिजल्ट को लेना, उसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके या तो डिस्प्ले कर देना, या तो मॉनिटर को ट्रांसफर होगा, या फिर प्रिंटर को ट्रांसफर होगा, या फिर स्पीकर को ट्रांसफर होगा। ये उसका काम है। तो इट कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन, इट्स कन्वर्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन into human understandable form. For example, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर। ठीक है, तो देखो कितने सारे हो गए। मॉनिटर हो गए, प्रोजेक्टर हो गए, मतलब दोनों एक जैसा ही है। मॉनिटर तो स्क्रीन पे दिखाता है, प्रोजेक्टर बिग स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपका हेडफोन यानी कि स्पीकर और ईयरफोन जैसा हो गया, और प्रिंटर आपका आउटपुट दे देगा। तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि तीन तरह के आप आउटपुट लेते हो कंप्यूटर से, एक डिस्प्लेबल फॉर्म में, एक प्रिंटेड फॉर्म में, और एक ऑडियो फॉर्म में। ठीक है, सम आउटपुट डिवाइस आर शोन इन द फिगर। जैसे कि देखो ये आउटपुट डिवाइस आपको दिखाया जा रहा है। दिस इज द मॉनिटर, दिस इज स्पीकर, प्रिंटर एंड 3D प्रिंटर। ठीक है, अब क्या है कि प्रिंटर भी कई तरह के होते हैं। जैसे डिसेबल प्रिंट, ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर भी होता है जो विजुअली चैलेंज पर्संस को डिस्प्ले करने के काम में आता है। आउटपुट कुछ इस तरह से होंगे। प्रिंटर भी अब क्या है कि कई तरह के हो गए। एक नॉर्मल प्रिंटर होते हैं, 3D प्रिंटर होते हैं, बिल्कुल 3D प्रिंटिंग जो रोबोटिक सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका बार बार यूज किया जाता है, उसे हम 3D प्रिंटर कहते हैं। अब जरा एक चीज समझना है कि अगर आप आउटपुट को कैटेगराइज करोगे तो आप कह सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट। कितने तरह के आउटपुट हैं? दो तरह के आउटपुट हैं। कौन कौन से आउटपुट हैं? एक आउटपुट होता है जिसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, और एक आउटपुट होता है जिसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का मतलब हो गया द आउटपुट यू आर गेटिंग ऑन द मॉनिटर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी एंड यू कैन चेंज इट। एंड हार्ड कॉपी आउटपुट का मतलब हो गया द आउटपुट यू आर गेटिंग थ्रू द प्रिंटर ऑन द पेपर, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। मीन्स यू कांट चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ड। इफ यू आर गोइंग टू चेंज ऑन द पेज, सपोज समथिंग इज प्रिंटेड देयर एंड यू आर गोइंग टू चेंज, मीन्स either you use the whitener or you do something like this and you are writing it and writing it, means it's not a changeable, but you are changing that anyone can come to know. But if anything is displayed on the screen, कुछ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपने टाइपिंग स्टार्ट किया, कुछ मिस्टेक हो जाता है, बैक स्पेस करके इरेज कर देते हो तो पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई मिस्टेक किया था वहां पे। बट पेपर पे ऐसा नहीं हो सकता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर के कुछ फॉर्म्स होते हैं, कॉमनली यूज प्रिंटर्स हैं, जिसमें हमारा आता है इंकजेट प्रिंटर, लेजरजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर से क्या है, कलर प्रिंटिंग का काम हम लेते हैं। लेजर प्रिंटर से हम नॉर्मली क्वालिटी लेजर प्रिंटर की बहुत अच्छी होती है कंपेरिजन टू इंकजेट। और डॉट मैट्रिक्स में डॉट डॉट होता है। बैंकिंग सिस्टम्स में या बिलिंग के लिए मैक्सिमम लो डॉट मैट्रिक्स, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एक अनदर टाइप्स के भी प्रिंटर आजकल यूज में आ रहे हैं, जिसको कि हम 3D प्रिंटर के नाम से जानते हैं, और ये फिजिकल रेप्लिका ऑफ डिजिटल 3D डिजाइन्स के यूज में आते हैं। दिस प्रिंटर्स आर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्रिएट्स द प्रोटोटाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Their usage is also being explored in the medical field, particularly for developing body organs. 3D प्रिंटर से हम बॉडी ऑर्गन्स भी डेवलप करते हैं, हम रोबोट भी डिजाइन होते हैं 3D प्रिंटर से। और 3D प्रिंटर से जो आप रेप्लिका कह सकते हो किसी इंडस्ट्रीज का, है ना, तो जो पेपर पे डिजाइन होता था ना, उसको अब क्या किया गया 3D प्रिंटर, मतलब वर्चुअल एकदम
दिखेगा, आपको लगेगा कि रियल दिख रहा है, एकदम बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है जैसा कि वो बनने के बाद दिखने वाला था। तो इसको हम 3D प्रिंटर कहते हैं। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। अब इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को जरा समझने की जरूरत है कि व्हाट डू मीन बाय द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक सिंपल कैलकुलेटर से आज हम मॉडर्न डे कंप्यूटर पे कैसे आ गए, डेटा प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स पे कैसे आ गए। मतलब जहां पे हम पत्थरों से कैलकुलेशंस करते थे, जहां पे हम बिट्स से कैलकुलेशन करते थे, हम उस कैलकुलेशन फेज से उठ के आज हम कीबोर्ड की मदद से हम कैलकुलेशन हमने स्टार्ट कर दिया। आज हम एक ऐसा डिवाइस की बात कर रहे हैं जो डिवाइस आपके लिए, मतलब आप यूं समझ लीजिए कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी उसके बिना चल सके। आज लॉकडाउन का फेज चल रहा है और इस लॉकडाउन फेज में बेशक अभी अनलॉक 1 आ चुका है, लेकिन इस लॉकडाउन के फेज में भी आप ध्यान कीजिए कि आपका पूरा आपके टाइम्स को यूजेबल बनाने के लिए आपने कंप्यूटर्स को बहुत ज़्यादा यूज किया है। कंप्यूटर आज सीखने के काम में आ रहा है, कंप्यूटर ऑफिस के अंदर काम में आ रहा है, कंप्यूटर आपके लिए फ्लाइट चला रहा है, कंप्यूटर आपका कार चला रहा है, कंप्यूटर आपको आपके घर का रास्ता तक बता रहा है। तो कई तरह के काम में आपने कंप्यूटर को इस्तेमाल किया है और आप कर भी रहे हैं और करेंगे भी। तो आखिर ये डेवलपमेंट हुआ कैसे, तो इसके बारे में हम जानेंगे। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स क्या होता है, तो देखो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स एक ऐसा आर्किटेक्चर है जिसमें ये बताया गया था कि कंप्यूटर का बेसिक कंसेप्ट क्या होगा। उसमें बताया गया कि कंप्यूटर के पास एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी, कंप्यूटर के पास एक मेमोरी होगी, उसे कुछ इनपुट दिया जाएगा और वो उसको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। Means it consists of the central processing unit for processing arithmetic and logical instructions, a memory to store the data and programs, input and output device that communication channels to send or receive the output, send and receive the output data. तो इस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स के बेस पे जो सबसे पहला कंप्यूटर डिजाइन किया गया था उस कंप्यूटर का नाम है ENIAC। क्या नाम है उस कंप्यूटर का? That is called ENIAC. Okay, so the output data, electronic numerical integrator and computer is the first binary programmable computer based on the von Neumann architecture. von Neumann architecture के बेस पे बनाया गया था और ENIAC stands for electronic numerical integrator and computer। मैं एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि क्या है इसका फुल फॉर्म। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। During the 1970s, large scale integration of electronic circuits allowed integration। 1970 में क्या हो गया था, LSI का कंसेप्ट आ गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मतलब जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से, IC के नाम से जानते हैं, उसका कंसेप्ट आ गया था और यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया था 1970 के बीच में। और जिसने ये परमिशन दी थी कि भाई कंप्लीट CPU ऑन ए सिंगल चिप्स। मतलब 1970 में ये हो गया था कि पूरा का पूरा CPU जो था एक सिंगल चिप्स पे आ गया था, लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले ऐसा नहीं था और वो जो सिंगल चिप्स था जिसके ऊपर वो सारे कंसेप्ट्स आते, सारे कंपोनेंट्स को रख दिया गया था एक चिप्स के ऊपर में, एंड दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और इसलिए आपके कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, दिस ऑल आर द माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए इसके बारे में हम फर्दर बात करेंगे, अभी हम इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये टाइमलाइन दिखाना चाहूँगा। ये टाइमलाइन दिखाना चाहूँगा जो आपको प्रॉपर डेवलपमेंट फेज को बताएगा, कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट फेज को बताएगा। तो आइए ज़रा सा इस टाइमलाइंस को हम समझते हैं अच्छे से कि ये टाइमलाइन क्या है। देखिए, ये टाइमलाइन स्टार्ट हो जा रहा है 500 BC से। ये टाइमलाइन स्टार्ट हो जा रहा है 500 BC से और यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइस आया था जिस कंप्यूटिंग डिवाइस का क्या नाम है, एबाकस। क्या नाम है उस कंप्यूटिंग डिवाइस का? एबाकस। Abacus is the computing is attributed to invention of abacus almost 3000 years ago, and it was a mechanical device capable of doing simple arithmetic calculations। एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसमें बीट्स लगे होते थे उस एबाकस के अंदर। उस बीट्स की मदद से आप उसे अप एंड डाउन करके, बीट्स को अप करके डाउन करके हम उसको यूज करते थे। आज भी एबाकस का यूज लोगों ने करने लगा है, आज भी यूज होता है फॉर द फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के लिए। वैदिक मैथ्स में वो एबाकस को यूज करवाया जा रहा है बच्चों को मेंटल स्किल्स उसकी डेवलप करने के लिए, है ना, उनकी मेमोरी पावर को डेवलप करने के लिए वो आज भी हम यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले एबाकस पे हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया था। उसके बाद 1642 में क्या हुआ, आपके पास एक डिवाइस आया जिस डिवाइस का नाम है पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट मैथमेटिक्स ने एक कंप्यूटर डेवलप किया, कैलकुलेटर डेवलप किया, मैकेनिकल कैलकुलेटर, एंड दैट इज कॉल्ड पास्कल कैलकुलेटर। और उसी को एक दूसरे नाम से पास्कलाइन के नाम से भी हम जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कलाइन।
and it is capable to do addition and subtraction of two numbers directly and multiplication and division through repeated addition or subtraction. मतलब एक ऐसा डिवाइस इन्होंने डेवलप किया 1642 में ब्लेज पास्कल ने, जिसको आप पास्कलाइन कहते हैं, जो ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करता ही था, साथ ही साथ दो नंबर्स का साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकता था। इसके बाद 1642 के बाद 1834 में आपके पास एक नया इंजन आ गया, जिस इंजन का नाम था एनालिटिकल इंजन। अभी मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, और वो क्यों कहा जाता है इसके पीछे का रीजन समझिए। क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन डेवलप किया था, एक डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, और वो दोनों इंजन कंप्लीट नहीं हो पाया था उनसे, लेकिन उन्होंने ही कंसेप्ट दिया था कि एक मॉडर्न कंप्यूटर कैसा होना चाहिए। तो एनालिटिकल इंजन इज द चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन, अ मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस फॉर इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट व्हिच इज कंसीडर्ड टू फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये जो 1834 में रिवॉल्यूशन आया था ना, कंप्यूटर रिवॉल्यूशन जो आया, वो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के बाद आया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, व्हिच इज कंसीडर्ड टू फॉर्म द बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। ये बेसिक ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए एनालिटिकल इंजन क्या बना, एक बेस बना, लोगों को एक आइडिया दे दिया इस इंजन ने कि मॉडर्न कंप्यूटर आपका कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद आप बात करते हैं 1834 के बाद, जो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस के बारे में बताया गया है। 1890 की बात करते हैं। 1890 में आपके पास एक मशीन आ गया था, जिस मशीन का नाम था टैबलेटिंग मशीन। हरमन होलरिथ ने एक मशीन डिजाइन किया था, एंड दैट मशीन इज कॉल्ड टैबलेटिंग मशीन, एंड दैट इज फॉर द समराइजिंग द डेटा स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड। ये पंच कार्ड क्या होता है, एक कार्ड की तरह होता है जहां पे इनपुट पंचिंग की माध्यम से हो रहा होता है, और उस मशीन के अंदर जब हम उस कार्ड को डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है इस तरह से उसके, और वो पंच के हिसाब से, वो जो जैसे आप पंच करोगे तो क्या होगा, बैक साइड में भी निकल के आएगा। तो ये फीलिंग्स होती है इसके ऊपर, जैसे आप किसी चीज पे पंच करके ना ऐसे फिंगर से फील करो तो यू आर एबल टू रीड इट, आप उसको फील कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से वहां पे डिटेल्स को इनपुट किया जाता था। एंड हियर ओनली द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग इज डेवलप्ड। यहीं से प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया पंच कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि पंच कार्ड ने एक तरह से मेमोरी का काम करना शुरू किया। हम डेटा को पंच करके उस पर स्टोर कर सकते थे, इंस्ट्रक्शंस को पंच करके हम उस पर स्टोर कर सकते थे। तो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ। 1819 में हरमन होलरिथ, 1834 में एनालिटिकल इंजन, एंड 1642 में पास्कलाइन ब्लेज पास्कल, एंड 500 BC अबाकस। उसके बाद आप बात करो 1937 में एलन ट्यूरिंग ने एक मशीन डेवलप किया, एंड दैट मशीन इज कॉल्ड ट्यूरिंग मशीन। द ट्यूरिंग मशीन कंसेप्ट वाज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन। मतलब एक ऐसे मशीन की कल्पना की गई, मशीन बनाया गया जो प्रोग्रामेबल था, जनरल पर्पस, दैट वाज कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय एक्सिक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन द पंच कार्ड्स। पंच कार्ड्स पे प्रोग्राम को स्टोर करके उस मशीन को दे दिया जाता था, और उस प्रोग्राम की मदद से वो कंप्यूटर आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कराता था, और डेटा को लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता था आपको। तो दैट इज द ट्यूरिंग मशीन। और ये कब हुआ, 1937 के बाद आ जाइए 1945 में क्या हुआ था, जरा सा यहां देखिए। यहां पे कंप्यूटर्स, मैंने अभी बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था वो ENIAC था। जॉन वॉन न्यूमैन ने एक इंट्रोड्यूस दिया, एक कंसेप्ट दिया, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम का मतलब कि भाई कंप्यूटर के अंदर में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाए, कैपेबल टू स्टोर द डेटा एज वेल एज प्रोग्राम इन द मेमोरी। मतलब डेटा को भी स्टोर करेगा, प्रोग्राम को भी। एंड दैट वाज द IDVAC एंड द ENIAC कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस। IDVAC एंड ENIAC कंप्यूटर। IDVAC का फुल फॉर्म आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट करेंगे प्लीज। ENIAC मैंने आपको बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और IDVAC का फुल फॉर्म आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, कि देखता हूं कितने लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं IDVAC का फुल फॉर्म। आप गूगल करके देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, और प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। इसके बाद 1945 के बाद 1947 जो था ये रिवॉल्यूशनरी फेज था। और यहां पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये INVAC और IDVAC के अंदर में यहां पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था कंप्यूटर्स को डिजाइन करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जो इनके लिए एक बड़े से हॉल की जरूरत होती थी। पूरे कंप्यूटर्स को एक बड़े से लकड़ी के तख्त पे, लकड़ी के पैनल के ऊपर लगाया जाता था कंपोनेंट्स को।
मोर देन 10,000 वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे वहां पे कंप्यूटर्स के अंदर, 18,000 से ऊपर, सॉरी मोर देन 18,000 वैक्यूम ट्यूब। और वो कंप्यूटर इतने ज्यादा आग मतलब हिट हो जाते थे कि उनको कूलिंग करने के लिए वाटर कूलिंग का व्यवस्था किया गया था। वाटर कूलिंग का व्यवस्था किया गया था, जो वो स्टोरेज पॉइंट होते हैं जहां पे वेजिटेबल्स रखे जाते हैं, ऐसा कि चारों तरफ पानी की मतलब एक धार गिराई जाती थी कि भाई इन्वायरमेंट को कूल किया जाएगा वहां पे, ऐसा होता था। तो यहां एक रिवोल्यूशन आया। अच्छा ध्यान रखना, ये कंप्यूटर बड़े बिग साइज के होते थे। तो यहां जो रिवोल्यूशन आया वो रिवोल्यूशन आया ट्रांजिस्टर्स के कारण। 1947 में ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट हुआ और ट्रांजिस्टर्स ने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया। और ट्रांजिस्टर्स का डेवलपमेंट हुआ था बेल लैब्स में, और ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया था। और ट्रांजिस्टर की कैपेबिलिटी क्या थी कि मोर देन 10 to 100 वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर सकता था वो ट्रांजिस्टर्स। तो क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज रिड्यूस कर गया वहां पे। अचानक जो कंप्यूटर का साइज, जो एक बड़े से हॉल में एक कंप्यूटर को एडजस्ट किया जाता था, वो अब थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। लेकिन इसके बाद जो एक्चुअल रिवॉल्यूशन है वो रिवॉल्यूशन है 1970 में। 1970 में आपका एक्चुअल रिवॉल्यूशन आया, और वो रिवॉल्यूशन आया इंटीग्रेटेड सर्किट के कंसेप्ट से। एक ऐसा चिप्स डिजाइन किया गया, सिलिकॉन चिप्स, जिसके ऊपर कई सारे मतलब एक स्मॉल एरिया सर्किट्स के ऊपर कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते थे ना, वो पूरे के पूरे चिप्स के ऊपर आ गए, इस साइज के चिप्स के ऊपर, which contains an entire electronic circuit on a very small area, and the size of computer has drastically reduced because of the integrated circuits. अच्छा, इंटीग्रेशन में भी चेंजेस आए। पहले क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन था। छोटे छोटे सर्किट्स को चिप्स पे ट्रांसफर किया गया। बाद में लार्ज स्केल हो गया, थोड़े बड़े बड़े सर्किट को चिप्स के ऊपर ट्रांसफर किया गया। बाद में VLSI हो गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और बड़े बड़े सर्किट्स को चिप्स के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका नतीजा क्या निकला, कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए, स्मॉल साइज कंप्यूटर हो गए। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हुआ हमारा किसका, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तो दिस आर द रिवॉल्यूशन। इसमें देखिए यहां पे एक लॉज है, मुरेज लॉ क्या थे, मुरेज लॉ predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a single microchips. In 1980 में क्या हो गया, the processing power of computer increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chips, term as VLSI. अभी मैंने आपको बताया था ना VLSI, मतलब 3 मिलियन कंपोनेंट्स आप सोच सकते हैं कि 3 मिलियन कंपोनेंट्स आप काउंट कर लीजिए, काउंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा। उसने उतने सारे कंपोनेंट को एक स्मॉल आपके हाथों में एडजस्ट हो जाने वाले चिप्स के ऊपर आ चुका था वो, एंड दैट इज कॉल्ड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फर्दर एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज मेड इट फिजिबल टू फैब्रिकेट हाई density of transistors and other components, approx 106 components of single IC called super large scale integrations. मतलब बाद में क्या हो गया कि भाई माइक्रो प्रोसेसर्स को भी और छोटा किया गया, तो एक और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आया, एंड दैट इज कॉल्ड सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI. IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। अब यहां पे देखो पर्सनल कंप्यूटर आना शुरू हो गया फॉर द होम यूजर। जब तक इंडिया नेटवर्क था ना, तब तक पर्सनल कंप्यूटर का कंसेप्ट नहीं होता था, लोगों के पर्सनली यूज के लिए कंप्यूटर था ही नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते थे, एक एक कंप्यूटर खरीद लेते थे, वही बहुत होता था उनके लिए, बिकॉज इट्स सो कॉस्टली। तो IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इन 1981 में सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ IBM के थ्रू, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, पीसीज के रूप में, ठीक है। उसके बाद तो फिर लोगों ने कई सारे कंप्यूटर बना दिए। एप्पल ने फिर एक मशीनटोस इंट्रोड्यूस किया मशीन्स 1984 में। देखो एप्पल ने 1984 में एक मशीनटोस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। द पॉपुलरिटी ऑफ पीसीज स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ जो है पॉपुलर GUI एनवायरनमेंट आने के बाद। GUI का मतलब हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो नॉर्मली हम आजकल यूज करते हैं, हर चीज पिक्चर्स के रूप में हमें दिखाई दे रहा होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले हर चीज टेक्स्ट के रूप में होता था। आप पुरानी फिल्मों में देख सकते हो कंप्यूटर को वजह टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही फ्लो कर रहा होता था, है ना। तो अब ग्राफिकल कंपोनेंट आ गया था, ग्राफिकल कंसेप्ट आ गया था, सॉफ्टवेयर में भी रिवोल्यूशन चल रहा था साथ ही साथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर में ही चेंजेज आए, सॉफ्टवेयर में भी चेंजेज आए। तो उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या हो गया, ग्रोथ ज्यादा हो गया, लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आपको मैं एक इस फिगर को दिखाता हूं, इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए।
काफी अच्छा फिगर कंपाइल किया गया है एनसीईआरटी के थ्रू। ये एनसीईआरटी की बुक है, मैं आपको पहले बता दूं तो मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से ही आपको टीचिंग करा रहा हूं, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर बुक अवेलेबल है। इंटरनेट पे ये बुक अवेलेबल है। अगर किसी को इस बुक की कोई कॉपी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेशन सर्किट्स, ये बता रहा है कि पहले एक ट्रांजिस्टर्स होता था, फिर 10 ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेशन हुआ, फिर 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, 1000,000 मीन्स मिलियन पे हम पहुंच रहे हैं। तो देखो कितने सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। अब जरा सा ध्यान देना, 1947 से पहले ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ, एक ट्रांजिस्टर का। उसके बाद देखते जाओ ये ग्रोथ कैसे बढ़ता जा रहा है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स का इसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, डॉट जो दिखा रहा है वो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर है। एक प्रोसेसर आया था 4004, नंबर्स थे इसके। 4004 में ऑलमोस्ट 1000 ट्रांजिस्टर्स को रखा गया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं 1000 ट्रांजिस्टर्स थे यहाँ पे। 8086 माइक्रो प्रोसेसर्स में डबल्स एवरी 2 ईयर्स, हर एक 2 ईयर्स में डबल्स होता जाएगा। 8086 में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मुझे लगता है 10,000 माइक्रो ट्रांजिस्टर्स थे। 286 माइक्रो प्रोसेसर्स में 100,000 माइक्रो प्रोसेसर्स थे। आप देखते जाइए हर बार ये बढ़ता जा रहा है, ये हर बार रेशियो बढ़ता जा रहा है। आज के कंप्यूटर की अगर बात करें, कोर i7 की बात करें, तो आपके पास देख सकते हो कितनी बड़े नंबर्स हैं, ये कितने थाउजेंड्स हैं, ये आप देख सकते हो, है ना। तो मिलियंस में इंफॉर्मेशन चल गया, बिलियंस में, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इज कंबाइंड ऑन ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर्स। और वो कोर i7 में आपको देखने को मिलेगा। जो प्रोसेसर आप आज यूज करते हो, जिस प्रोसेसर्स को कई बार आप ये कहते हो तो सिस्टम बड़ा स्लो चल रहा है, आप एज्यूम करो कि कितने सारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर। तो दैट इज व्हाई, दैट इज द SLSI, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VLSI के बाद क्या आया था? सुपर लार्ज इंस्ट्रक्शंस। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट ने GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था, तो आने के बाद कंप्यूटर्स की पॉपुलैरिटी ज्यादा हो गई, तो लोग ज्यादा यूज करने लगे। मतलब पहले लोग DOS कमांड को यूज करते थे या यूनिक्स को यूज करते थे। अराउंड 1990 में इंटरनेट का भी डेवलपमेंट हो गया था। देखो इंटरनेट भी आपका डेवलप कर गया था, और इंटरनेट के डेवलपमेंट से लोगों का यूज बढ़ गया, तो लोगों को कंप्यूटर की ज्यादा आवश्यकता होने लगी। फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स, फिर लैपटॉप्स आ गए, पर्सनल कंप्यूटिंग हो गए, ये ज्यादा पोर्टेबल होता गया। फिर स्मार्टफोन आ गए, टैबलेट्स आ गए, अदर डिजिटल PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिवाइसेज आ गए। तो ये सब किसके कारण हुए? टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऐसा हो गया कि कंप्यूटर का साइज जो है वो छोटा होता चला गया, मेमोरी ज्यादा होता गया, स्पीड बढ़ती चली गई, मैकेनिज्म, कनेक्टिविटी मैकेनिज्म बढ़ता चला गया उसके अंदर में, तो कंप्यूटर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। ठीक है, इन 1965 इंटेल co-founder Gordon Moore introduced Moore's law, which predicted that the number of transistors on a chip would double every 2 years while the cost would be half। मतलब ट्रांजिस्टर्स ज्यादा इस्तेमाल होने लगे और कॉस्ट कम होना शुरू हो गया। ठीक है, The next wave of computing devices including wearable gadgets such as a smart watch, अब देखो आजकल स्मार्ट वॉच भी चल रहा है, लेंसेज, हेडबैंड्स, हेडफोन्स, तो इन सब चीजों का इस्तेमाल होने लगा। फर्दर स्मार्ट अप्लायंसेज आ गए जो पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT में आप यूज करते हो, पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आ गया। तो अब आप सोच सकते हो कि कंप्यूटर आपके पॉकेट के अंदर आ गया। अब टाइम आ गया, कंप्यूटर एक ऐसे छोटे से डिवाइस के ऊपर भी आपको कंप्यूटर दिखाई देगा, वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी। सो व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी? फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग विद द कंप्यूटर, you not want to do the things for the today and for the current time only. You want to save your information, you want to save your data for the future also. It means that I want to say, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा वो काम कल के लिए, परसों के लिए, या महीनों के लिए, या सालों के लिए सुरक्षित रहे। तो आखिर सुरक्षित कैसे रहेगा वो काम, कहाँ रहेगा, किस जगह पर रहेगा? तो कहता है कि वो लोकेशन, वो डिवाइस जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है, ऐसे डिवाइस को हम मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब है कि जब मेमोरी की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर्स हैविंग द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेमोरी, इसके पास 2 तरह के मेमोरी होते हैं। जस्ट लाइक वी पीपल्स आर यूजिंग आवर ब्रेन, आवर माइंड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल, हमारे पास भी यहाँ पे एक मेमोरी पार्ट है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। या जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ से निकल रहे हैं,
और थ्रू प्रोसेसिंग ये मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं स्टोर है। तो ये जो स्टोर है, दिस द मेमोरी इज कॉल्ड माई प्राइमरी मेमोरी, और हम इसके मेन मेमोरी भी कहेंगे। बट अगर हम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी आपके स्क्रीन पे एक फाइल खुली हुई है जिस फाइल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आखिर ये इंफॉर्मेशन कहाँ है? एक फाइल के अंदर, और वो फाइल कहाँ है? एक डिवाइस के अंदर। डिवाइस क्या है? तो कंप्यूटर, माय स्मार्टफोन या माय कंप्यूटर मेमोरी, वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया था। तो ठीक उसी तरीके से हम बुक के ऊपर भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, हम नोटबुक पे कुछ लिख के इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर द सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी। तो बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जो करंट इंफॉर्मेशंस को, करंट डेटा को, करंट इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करके रखता है फॉर द प्रोसेसिंग। आपका कोई भी प्रोसेसिंग अगर हो रहा होता है तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही होता है, ठीक है। अगर आप कोई फाइल ओपन करते हो तो वो परमानेंट तो सेकेंडरी पे होता है, लेकिन सेकेंडरी से वो इन्फॉर्मेशन उठ के आपके प्राइमरी मेमोरी में आता है। वहां से फिर आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करके या तो आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर और प्रिंटर को प्रोवाइड करता है, फिर आप वहां से वो डेटा रिसीव करते हो, ठीक है। तो जब भी आपके सामने मेमोरी की बात आएगी तब आपको याद रखना है कि मेमोरी आपके पास दो तरह के हैं। एक आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी और दूसरा हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हम बात करें कि जब आप मेमोरी की बात करते हो, मेमोरी क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, वो परमानेंट फॉर्म में स्टोर कर सकता है फ्यूचर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडरी मेमोरी उसके लिए यूज होता है, प्राइमरी टेम्पोररी पर्पस के लिए यूज होता है। तो ईच एंड एवरी मेमोरी इज कैन बी मेजर्ड। अब देखो, जैसे आप कहते हो, मैं कह दूं कि भाई किसी भी चीज़ का मैं मेजरमेंट करता हूँ, सपोज करो मैं लेंथ मेजरमेंट करता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कि ये इतना मीटर है या इतना सेंटीमीटर है या इतना किलोमीटर है। हाँ, किसी वेट का मेजरमेंट करते हो तो आप कह देते हो कि दिस इज दिस मच ग्राम या दिस मच मिलीग्राम या दिस मच केजी या क्विंटल, टन, आप इस तरीके से बताते हो। तो ये जो मीटर है या ग्राम है या केजी है या सेकंड है या मिनट है या आवर है, ये है क्या? दिस इज कॉल्ड यूनिट। दिस इज द यूनिट ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, डिफरेंट थिंग्स वी आर नीड टू मेजर, और हम उसके लिए अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं। ठीक उसी तरह से आपके कंप्यूटर्स की मेमोरी को भी मेजर किया जाता है, तो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स भी हैं। तो कहता है कि कंप्यूटर सिस्टम यूजेस द बाइनरी नंबर्स टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशंस, और वो उसी फॉर्म में उसे प्रोसेस करता है, जैसे हम 0 एंड 1 की फॉर्म में कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हमारा मशीन लैंग्वेज है, और मशीन लैंग्वेज पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर हमेशा चीज़ों को मशीन की भाषा में समझता है, दैट इज 0 एंड 1। तो जो मेमोरी यूनिट होती है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी की अगर आप बात करें तो उसे हम बिट्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? मेमोरी क्या है? हमारा बिट्स है। लेकिन बिट्स जो है वो बेसिक यूनिट्स है, मतलब फर्स्ट 0 एंड 1 को रखने के लिए उस यूनिट्स को यूज किया जाता है। बट फर्दर इस यूनिट को ग्रुप अप किया गया वर्ड्स बनाने के लिए, वर्ड्स के लिए। अगर 4 बिट को अगर ग्रुप कर दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड निबल। क्या कहते हैं उसे हम? निबल। जैसे कि 1001, 10010। तो ये क्या है? देखो यहाँ पे 4 बिट्स हैं, टोटल 4 बिट्स हैं इसके अंदर में। लेकिन जब इसी तरह से दो वर्ड्स को, दो निबल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, 2 निबल्स को कंबाइन करेंगे तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे? 8 बिट्स हो जाएंगे। तो 8 बिट्स के वर्ड को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। तो आपके पास अब यहाँ पे 3 टर्म्स आए हैं जिसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज द बिट, सिंगल डिजिट, आइदर 0 और 1। सेकेंड इज द निबल, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स, उसे हम निबल कहेंगे। थर्ड इज द बाइट, कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स और 2 निबल, या तो 2 निबल्स कह दो या 8 बिट्स कह दो, तो वो क्या बनेगा? हमारा बाइट्स बनेगा, ठीक है। लाइक द अदर स्टैंडर्ड यूनिट्स, बाइट्स आर ग्रुप टुगेदर। अब होता क्या है, जब आप बाइट्स की बात कर रहे हो तो नॉर्मली जो कैरेक्टर्स और किसी भी डिजिट्स या किसी भी सिंबल को मेजर करते हैं तो हम बाइट्स के फॉर्म में मेजर करते हैं। लेकिन इस बाइट्स, अब बाइट्स क्या है कि अगर मान लो किसी ने, जैसे कि आपसे किसी ने पूछा कि आपकी मोबाइल की क्या मेमोरी, आपने कह दिया 3GB 32GB, तो 3GB 32GB तक तो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछा 3GB है और आपने उसे बता दिया 2 पावर 20 बता दिया, मतलब 40 बता दिया, 2 पावर 40 अगर आपने उसको बता दिया, क्योंकि 2 पावर 10 का मतलब हो गया 1 किलोबाइट, 2 पावर 20 का 1 मेगाबाइट, 2 पावर 30 बता दिया 1, और 2 पावर 30 और आपने क्योंकि 3GB कहा तो 3 मल्टीप्लाई, तो वो कंफ्यूज कर जाएगा।
वो कंफ्यूज कर जाएगा कि इतने बाइट्स हैं। टू दी पावर 30 बाइट्स को अगर बोलना हो तो कितना लंबा इंफॉर्मेशन हो गया, तो बोलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि बिगर यूनिट्स का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, तो बाइट्स को ग्रुप अप करके चंक्स ऑफ बाइट्स को बिगर यूनिट्स में कन्वर्ट किया गया। ये देखो बिगर यूनिट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, बिगर यूनिट्स में इसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब इस टेबल्स को आप देख सकते हो, जो टेबल्स आपको हेल्प करेगा, दे शोज द डिफरेंट मेजरमेंट्स यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज। जरा इस टेबल्स को ध्यान से देखिए कि क्या क्या है आपके पास। जैसे किलोबाइट, जो बाइट्स के बाद का नेक्स्ट लेवल पे जो यूनिट्स मिलेगा दैट इज कॉल्ड किलोबाइट। उसके बाद क्या है मेगाबाइट, उसके बाद क्या है गीगाबाइट, उसके बाद क्या है टेराबाइट। 1 TB हार्ड डिस्क आजकल कॉमनली यूज होने लगा है कंप्यूटर्स के अंदर में, तो ये आपको ध्यान होगा, आपने देखा भी होगा। रैम हम जीबी में यूज करते हैं, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, सिंपल है। मोबाइल में भी अब जीबी में हार्ड डिस्क यूज होता है, किसी से भी पूछ लो, हर कोई बता देगा रैम यूज होता है, तो वो भी आपको ध्यान होगा। MB तो आप पेन ड्राइव देख लो, आज के डेट में आप पेन ड्राइव यूज करते हो तो वो भी आपका 8 GB का होता है, 4 GB का होता है, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट, KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ठीक है, इस 1025 बाइट्स को नॉर्मली हम टू दी पावर 10 लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, टू दी पावर 10 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू दी पावर 10, टू दी पावर 10। ठीक है, टू दी पावर 10 लिखते हैं। टू दी, एक मिनट में पेन ले लूं, टू दी पावर 10 लिखते हैं। ठीक है, 1024 बाइट्स को ध्यान रखिएगा, 1024 इज द टू ट्रूथ पार्ट। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स हो जाएगा, ये आपका 1024। 1 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स हो जाते हैं। 1 टेराबाइट्स इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स। अगर हम P उसके आगे चलते हैं तो जो नेक्स्ट यूनिट्स आता है हमारे पास, वो यूनिट्स हैं पेटाबाइट्स। क्या है? पेटाबाइट्स। इट इज कॉल्ड PB, पेटाबाइट्स। 1 पेटाबाइट्स इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स। उसके बाद आपके पास आता है एक्साबाइट। एक्साबाइट का मतलब हो गया 1 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पेटाबाइट्स। उसके बाद आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट का मतलब हो गया 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 एक्साबाइट्स। एंड योटाबाइट हो गया 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। नॉर्मली इस तरह के मेमोरी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहाँ पे मेमोरी हाई अमाउंट ऑफ मेमोरी होते हैं, वहाँ पे मेमोरी टेराबाइट में नहीं योटाबाइट्स में स्टोर हो जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके कि मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, मेमोरी यूनिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर बात करें, बेसिक लेवल पे बात करें तो बिट होता है। 4 बिट्स को कंबाइन कर दोगे तो 1 निवल बन जाएगा। 2 निवल या 8 बिट्स को कंबाइन कर दोगे तो 1 बाइट बन जाएगा। 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 का मतलब हो जाता है टू दी पावर 10। 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट एंड 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। ठीक है, इसके बाद अब हम बात कर लें टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के मेमोरी होते हैं। तो अगर आप मेमोरी को देखिएगा तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या है हमारे पास। ह्यूमन बीइंग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर ए लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन और टेक सम एक्शंस, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर मेमोरी कंप्लीटली। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों के लिए हम नोट्स बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम चीज़ों को भूल जाएंगे। जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हो, तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगा जब कभी भी आप ऑनलाइन स्टडी करते हो, यूट्यूब से स्टडी करते हो, तो ऑलवेज कीप योर पेन एंड नोटबुक विथ यू। ऑलवेज मेक अ हैबिट टू टेक अ नोट्स। क्यों नोट्स की क्यों जरूरत है? बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग एंड आई एम नॉट गिविंग यू एवरीथिंग। आई एम समटाइम आई एम स्पीकिंग, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो यू विल टेक द नोट्स। नोट्स लेने की हैबिट होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स नोट करने की हैबिट होनी चाहिए। तो दैट्स द व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज योर प्राइमरी मेमोरी इज नॉट कैपेबल टू रिमेंबर एवरीथिंग फॉर द लॉन्ग टाइम. Your primary memory is not able to remember everything for the long time. So the same is happened with the computer system. यहाँ भी वही बात होती है. तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर भी जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे होते हो, वो इंफॉर्मेशन दो तरह की मेमोरी पे जाती है, एक प्राइमरी पे और एक सेकेंडरी पे.
जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी का काम है इंफॉर्मेशंस को टेम्पोरली स्टोर करना। अगर आप किसी डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, आपने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, आपने किसी फाइल को ओपन कर दिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन विल कम टू द प्राइमरी मेमोरी। ये कहाँ स्टोर होगा? प्राइमरी मेमोरी में जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राइमरी मेमोरी इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इसेंशियल कंपोनेंट है। कौन? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द essential components of a computer system. Programs and data are loaded into the primary memory before processing. अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रोग्राम और डेटा जो होता है वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में ही जाता है और उस जगह से सीपीयू को अवेलेबल होता है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू इज ऑलवेज डायरेक्टली ट्राई टू इंटरेक्ट विद द प्राइमरी मेमोरी। किसी भी तरह के रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए वो सबसे पहले किसको टच करेगा? वो प्राइमरी मेमोरी को। यहाँ भी एक हायरार्की है। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी से ऊपर भी कुछ हायरार्की है, जैसे रजिस्टर्स होते हैं, कैश मेमोरी होते हैं। तो कंप्यूटर सीपीयू जो है वो पहले तो रजिस्टर्स को टच करता है, क्योंकि रजिस्टर्स लिमिटेड होते हैं तो वो कैश मेमोरी के पास जाता है। और कैश मेमोरी इंफॉर्मेशन को कहाँ से लेके आता है? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से उठ के आता है? सेकेंडरी स्टोरेज के पास से। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि जो माइक्रो प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी होती है कि मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे कैन प्रोसेस इन 1 सेकेंड, तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड भी तो होना चाहिए। तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो कैपेबल होना चाहिए इतने इंफॉर्मेशन को एक साथ अवेलेबल कराने के लिए। अगर वो कैपेबल नहीं है, अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैपेबल नहीं है, वो मेमोरी कैपेबल नहीं है उसी स्पीड से सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करने के लिए, तो आपका सीपीयू हाई स्पीड के होने के बावजूद भी आइडल मोड में आ जाएगा। आप इसको यूं समझिए कि आपका जो इंजन लगा हुआ है बाइक के अंदर में, सपोज कीजिए वो 800 सीसी का लगा हुआ है, लेकिन जो पेट्रोल का नोजल है जहां से पेट्रोल सप्लाई होगा इंजन को, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि उतना पेट्रोल दे उसको इंजन को ताकि वो अपनी फुल इफिशिएंसी को यूज कर सके। तो लाख इंजन 800 सीसी होने के बाद भी आप वो स्पीड गेन नहीं कर सकते हो, आप वो इफिशिएंसी नहीं ले सकते हो उससे। समझ रहे हो आपको? तो दैट इज द पार्ट। द सीपीयू इंटरैक्ट्स डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। इसको ध्यान कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम एंड रोम। अब इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है, जो पॉइंट्स अभी मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा, आप इसको जरा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट्स आपको याद कीजिए कि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। जो रैम है वो क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। सपोज देयर इज अ कंप्यूटर विद रैम बट नो सेकेंडरी स्टोरेज। चलो, तो रैम क्या है? रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। पहली बात को तो आपको ये याद करना है। ठीक है, इस वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? वोलाटाइल का मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशंस को तभी तक अपने पास स्टोर कर सकता है जब तक इसको पावर सप्लाई दिया जा रहा है। अगर पावर सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन भी इरेज हो जाएगा, कंटेंट्स ऑफ रैम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। कहते हैं ना, पावर सप्लाई टर्न ऑफ, द कंटेंट्स ऑफ रैम आर वाइप्ड आउट, इरेज हो जाएगा। तो इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पोरली व्हाइल कंप्यूटर इज वर्किंग। Whenever computer is started, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि whenever computer is started, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड। जब कभी भी कंप्यूटर स्टार्ट होगा या कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स एंड डेटा आर लोडेड इनटू द रैम फॉर द प्रोसेसिंग। वो सारे डेटा कहाँ जाके स्टोर होते हैं? वो सारे डेटा रैम में जाके स्टोर होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। रैम इज यूजुअली रेफर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। इसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी रैम को जानते हैं। क्यों मेन मेमोरी कहते हैं? क्योंकि ये प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर होता है या सेकेंडरी स्टोरेज से फास्टर होता है। ये तो रैम की बात हो गई। अब आते हैं हम रोम की बात करने। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि आपने अगर कुछ भी लिखा, आपने ABCD XYZ कुछ भी टाइप किया, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा होता है? वो रैम में स्टोर होता है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि चलो प्राइमरी मेमोरी 2 तरह के हो गए, रैम एंड रोम। तो रोम की क्या यूजेज है? तो मैं बताता हूँ। पहले तो समझो कि डिफरेंस क्या है। रैम क्या है? वोलाटाइल। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। रैम गिव द फैसिलिटी टू रीड एंड राइट। रैम आपको रीड एंड राइट दोनों की फैसिलिटी देती है, जबकि रोम सिर्फ रीड की फैसिलिटी देती है। ये रीड ओनली है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हो गया कि डेटा डिलीट नहीं होता है, लॉन्ग लाइफ होता है।
वो परमानेंट स्टोरेज है उसके ऊपर, ठीक है, आप उसके ऊपर लिख नहीं सकते हैं, ठीक ना। रेयरली चेंज होता है, जब आप पर्टिकुलर प्रोसेस से उसे चेंज करेंगे तभी वो चेंज होगा। अब रोम की रिक्वायरमेंट क्या है? एक्चुअली रोम जो है वो कंप्यूटर्स के बेसिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। रोम जो है वो कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। तो जब कभी भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो बायोस में जाके इंफॉर्मेशंस को रीड करता है। और ये बायोस का मतलब होता है बायोस का मतलब हो गया BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसको हम रोम बायोस भी कहते हैं। तो आपके कंप्यूटर्स की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मदरबोर्ड के ऊपर वो स्टोर किया जाता है एक खास मेमोरी में, एंड दैट इज कॉल्ड रोम। वहां से इंफॉर्मेशंस को कौन लेता है? देखो, ये स्टार्टअप बूट लोडर प्रोग्राम होता है, मतलब जो बूट लोडर प्रोग्राम है जिसके थ्रू आपका कंप्यूटर स्टार्टअप प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो इंफॉर्मेशन रोम पे स्टोर होता है। और बूट लोडर प्रोग्राम अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं है तो आपके कंप्यूटर कभी स्टार्ट नहीं होंगे, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कभी लोड नहीं होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रोम की होती है, और रोम के अंदर वो बूट लोडर प्रोग्राम होता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात को? इसलिए हमें रोम की आवश्यकता है। अभी मैंने आपसे बात किया था कि जब आप मेमोरी की हायरार्की को देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि सीपीयू के सबसे नजदीक रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद कैश होता है, कैश के बाद रैम होता है, रैम के बाद सेकेंडरी स्टोरेज होता है। अब इस हायरार्की में देखो कैश मेमोरी आपके सामने आ गया। इसको कैच नहीं बोलते हैं, कैश पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। CACHE लिखते जरूर हैं, तो कैच नहीं बोलेंगे, कैश मेमोरी कहेंगे। ये कैश मेमोरी क्या होता है? कई लोग इसको कैच मेमोरी भी बोलते हैं, लेकिन इट इज रियली प्रोनाउंस एज ए कैश। तो रैम इज अ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज अ कंप्यूटर प्रोसेसर। कहता है कि रैम, मैंने अभी आपको बताया ना कि एक स्पीड मेंटेनेंस के लिए हमें मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो रैम उतना फास्ट नहीं है जितना कि कंप्यूटर प्रोसेसर फास्ट होता है। सेकेंडरी स्टोरेज से तो फास्ट है लेकिन प्रोसेसर से बहुत स्लो है। तो अब इस गैप को फुलफिल करने के लिए अगर क्या होगा कि रैम प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर सीपीयू को नहीं मिला ड्यू टू रैम, तो सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा। देखिए, तो बिकॉज रैम सीपीयू में हैव अ स्लो डाउन, सीपीयू क्या होगा? स्लो डाउन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को स्पीड अप बनाने के लिए, इस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए एक वेरी हाई स्पीड मेमोरी को सीपीयू और रैम के बीच में प्लेस किया जाता है, जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी का काम क्या है? इट स्टोर्स द डेटा, it stores and copies the data from the frequently accessed primary memory location। मतलब प्राइमरी मेमोरी लोकेशन से जहां से वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा होता है वो डेटा को लेकर अपने पास रख लेता है, या यूं कह सकते हैं कि जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है वो इंफॉर्मेशन वहां पे आ जाता है। क्योंकि कैश मेमोरी लिमिटेड होते हैं तो वो सारे इंफॉर्मेशंस को लेके नहीं आ पाता है, बट कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने पास लेता है, सीपीयू को अवेलेबल कराता है, और बाद में अगर कोई डेटा एक्सेस करना होता है तो सीपीयू डायरेक्टली जाके रैम से डेटा को एक्सेस कर लेती है। ध्यान से देखिए, इट स्टोर द कॉपीज ऑफ द डेटा फ्रॉम frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time required to access the data from primary memory. When the CPU needs to access memory, it first examine the cache। फर्स्ट कहाँ एग्जामिन कर रहा है? देखो, फर्स्ट वो एग्जामिन कर रहा है कैश मेमोरी में कि अगर वो इंफॉर्मेशन कैश में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो क्या करेगा? रैम के पास चला जाएगा, रैम से डेटा को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी, और आपके समझ में आ गया कि प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आ गए, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? कैश मेमोरी आ गया। तो कैश मेमोरी का रोल समझ में आ गया। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी मेमोरी। एज आई टोल्ड यू कि सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, मैं एक सिंपल तरीके से बता दूं। प्राइमरी टेम्पोररी स्टोरेज है, सेकेंडरी परमानेंट स्टोरेज है। प्राइमरी कॉस्टली होता है, सेकेंडरी सस्ता होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी हैज अ लिमिटेड। दूसरा क्या है? प्राइमरी की कैपेसिटी कम होती है, जैसे 3 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB रैम लगा लेते हैं, लेकिन 100,000 GB आप हार्ड डिस्क होता है आपके पास, 500 GB का हार्ड डिस्क होता है, 1 TB का मतलब 1000 ही हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि प्राइमरी मेमोरी हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे पहली बात क्या हो गई कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी है। अच्छा, सेकंड क्या है? एंड आइदर वोलाटाइल और रीड ओनली मेमोरी होता है ये, यानी कि इरेज हो जाएगा या सिर्फ रीड हो सकता है, जबकि हमको रीड एंड राइट दोनों की जरूरत होती है। तो ऐसे केस में हमें जरूरत होती है ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी की। हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी की, टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। हम परमानेंटली डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकें इसके लिए, ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमारा नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी?
नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब हो गया परमानेंट स्टोरेज है और उसके पास लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होता है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी मेमोरी। इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। सीपीयू इसको कभी भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पीड कम होती है, तो यह हमेशा रैम, पहले इंफॉर्मेशन रैम में जाता है, रैम से कैश में जाता है और कैश से सीपीयू में जा रहा होता है, या रैम से डायरेक्ट सीपीयू को चला जाएगा। ठीक है। कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज नीड्स टू बी फर्स्ट ब्राउट इनटू द मेन मेमोरी, यानी कि रैम सीपीयू एक्सेस के लिए जरूरी होता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे देखिए आपके पास क्या क्या सेकेंडरी स्टोरेज हैं। आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क, जिसको एसडीडी कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ये सारे आपके सेकेंडरी स्टोरेज हैं, जो आपको देखो यहाँ फिगर में भी दिखाए गए हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए, दिस ऑल आर द सेकेंडरी स्टोरेज। ये जितने भी फिगर आपको दिखाए गए हैं, पेन ड्राइव ये आपके सेकेंडरी स्टोरेज है, हार्ड डिस्क ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज है, सीडी, मेमोरी कार्ड, ठीक है, टेप ड्राइव, एसडी कार्ड, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सारे क्या है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज हैं। However, these days there are secondary storage devices like solid state drives which supports very fast data. ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी स्टोरेज हमेशा स्लो ही होता है। आजकल सेकेंडरी स्टोरेज कई हाई क्वालिटी भी आ गए हैं, चिप्स बेस्ड आ गए हैं, सॉलिड स्टेट आ गए हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट रैम की तरह ही होती है, बट वो रैम की तरह यूज नहीं हो पाता है। ठीक है। तो वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर सपोर्ट करता है कौन? सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसको अर्लियर एसडी ऐसा नहीं कर पाते थे। ऑल्सो डेटा ट्रांसफर बिटवीन द कंप्यूटर्स हैव बिकम इजियर एंड सिंपलर ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज एंड पोर्टेबल पेन ड्राइव। तो अब डेटा को स्टोर करना या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारा प्रोसेस बहुत इजी हो चुका है। ठीक है। डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा कैप्चरिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिट्राइवल्स, हम इन सब के बारे में देखेंगे कि डेटा कैप्चरिंग का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, रिट्राइवल का मतलब क्या होता है। मैं नॉर्मली आपको बता दूं, देखो डेटा कैप्चरिंग का मतलब होता है गैदरिंग्स ऑफ डेटा। आप डेटा जो गैदर करते हो, आप डेटा जो रिसीव करते हो, आप चाहे किसी भी डिवाइस के थ्रू डेटा को रिसीव करो, वो चाहे कीबोर्ड हो या बारकोड रीडर हो, कैमरा हो, माइक हो, कोई भी चीज़, तो दिस इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। स्टोरेज का मतलब हो गया कि डेटा अगर कैप्चर हुआ है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर भी होना चाहिए, हमें किसी ना किसी जगह पर उसे स्टोर करना होगा, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। एंड रिट्राइवल का मतलब आपने डेटा कैप्चर क्यों किया, आपने डेटा कैप्चर किया फर्दर प्रोसेस के लिए। फर्दर प्रोसेस के लिए उसका स्टोर होना जरूरी है, और अगर आपने स्टोर किया है और आपका पर्पस ही फर्दर प्रोसेसिंग था, तो आप रिट्राइव भी करोगे डेटा को, तो दैट इज कॉल्ड डेटा रिट्राइव। तो टू प्रोसेस द डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। मतलब किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू इनपुट एंड दिस इज फॉलोड बाय स्टोरेज। ठीक है, इनपुट होगा तो स्टोरेज भी होगा इन अ फाइल और डेटाबेसेस एंड फॉर द यूज ऑफ द फर्दर एंड व्हेनेवर डेटा इज प्रोसेस्ड इट इज फर्स्ट रिट्राइव्ड फ्रॉम द फाइल और डेटाबेस सो दैट इट परफॉर्म फर्दर एक्शन। तो डेटा आपने अगर सेव कर लिया तो आप उसे रिट्राइव भी करोगे। कहने का अर्थ है आप क्लास में बैठे हो, आप लेक्चर्स को रिसीव कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कैप्चर्स कर रहे हो। कैप्चर करने के बाद आप उसको नोटबुक पे राइट डाउन भी करते हो। नोटबुक पे राइट डाउन करने के बाद जब आपको नियर एग्जाम होते हैं, एग्जाम के टाइम में आप क्या करते हो, नोटबुक से उसको देखते भी हो, समझते भी हो और पढ़ते भी हो। तो दैट इज द प्रोसेस। कैप्चरिंग मीन्स यू आर लिसनिंग इन द रूम, इन द क्लास, यू आर राइटिंग डाउन द नोट्स, तो ये क्या कैप्चरिंग हो रहा है। फिर यू आर स्टोरिंग इट द नोटबुक, स्टोरेज हो गया, एंड फर्दर यू आर रीडिंग द सेम कंटेंट अगेन, दैट इज द रिट्राइवल। तो अब डेटा कैप्चरिंग की अगर बात करें तो इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से जो हम डेटा लेते हैं डिजिटल फॉर्म में, जो भी डेटा डिजिटल फॉर्म में लिया जाता है उसे हम डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। ठीक है। तो डेटा कैप्चरिंग और प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। अब कैप्चरिंग जो है वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट से लेके कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट तक हो सकता है। कीबोर्ड से आप ले सकते हो, बारकोड रीडर से ले सकते हो, ठीक है, कैमरा से ले सकते हो, रिमोट सेंसर से ले सकते हो, सोशल मीडिया के थ्रू आप डेटा ले सकते हो, जीपीएस के थ्रू आप डेटा ले सकते हो। तो अलग अलग तरीके से हम डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। एक बार डेटा कैप्चर हो गया तो हमें जरूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने की। स्टोरेज का मतलब हो गया द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कैप्चर्ड डेटा। प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा, जो डेटा कैप्चर हुआ था उसको स्टोर करना है। क्यों स्टोर करना है? सो दैट यू कैन प्रोसेस इट फर्दर। अब क्या है कि आज के समय में ना डेटा बहुत ज़्यादा होने लगा है, बहुत डेटा जनरेट हो रहा है। आप वेबसाइट, सोशल साइट्स पे ही आ जाइए, या फेसबुक, व्हाट्सएप आदि, फ्रिक्वेंटली मैसेजेस जा रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। पोस्ट दिए जा रहे हैं, पोस्ट रिसीव किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टोर। तो डेटा स्टोरेज आजकल चैलेंजेस टास्क हो चुका है।
और क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस सस्ता हो जा रहा है, स्टोरेज डिवाइस जो है वो सस्ता होने के कारण ऐसा है कि हम तो मतलब डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट फिर भी आपको उसको मैनेज करना होगा। तो डेटा कीप्स इन इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ डेटा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ डेटा क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो डेटा इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, तो स्टोरेज डिवाइस भी आपको अपग्रेडेड चाहिए पीरियडिकली। एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक्चुअली सर्वर होते हैं जिसे हम डेटा सर्वर कहते हैं, जिसके ऊपर डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है, डिप्लॉय किया जाता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं कि डेटा को प्रॉपरली प्रोसेस किया जा सके, इफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोसेस किया जा सके, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेसर्स कंप्यूटर लगाए जाते हैं, ठीक है, और इजिली उसको मेंटेन किया जा सके। तो डेटा सर्वर की हमें जरूरत होती है, ठीक है। इसके बाद आता है डेटा रिट्राइवल। रिट्राइवल का मतलब क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि आपने डेटा कैप्चर किया है, फर्दर आप डेटा को स्टोर करोगे, पर्पस ही फ्यूचर यूज है, तो इट्स नीड्स अ रिट्राइवल, मींस फेचिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, दैट इज कॉल्ड रिट्राइवल। और ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, आप चाहे एक बार रिट्राइव करो, चाहे 10 बार रिट्राइव करो, दैट इज ऑन यू। और इसके लिए हम कुछ डेटाबेस सिस्टम मैनेज करते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जिससे कि हमारा डेटा एक्सेस टाइम कम हो सके और डेटा प्रोसेसिंग फास्ट हो सके। अब है कि डेटा आपने स्टोर कर लिया, अभी मैंने आपको बताया था कि डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोर हो जाता है, तो स्टोरेज को मैनेज करने का ना बड़ी समस्या आ जाती है कि हम कैसे स्टोरेज को मेंटेन करें, हम कैसे, बाबा हर बार तो हार्ड डिवाइस लगाए नहीं जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, डेटा को डिलीट करने की बात की जाती है। जब बहुत सारी डेटा हो जाते हैं, माल फंक्शंस हो जाता है, तो सिस्टम क्रैश होने लगता है, सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है, तो आपको डेटा को डिलीट करना होता है। डेटा को जब आप डिलीट करते हैं तो एक्चुअली सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, जरा इस चीज को जानने की जरूरत है। कहता है कि कई बार डेटा को दो तरीके से, एक तो होता है कि आपने जानबूझ के डेटा को डिलीट किया पर्पसफुली, और एक होता है कि एक्सीडेंटली डेटा आपका डिलीट हो गया, या किसी हैकर्स ने आपकी डेटा को डिलीट कर दिया, या किसी सॉफ्टवेयर ने आपकी डेटा को डिलीट कर दिया। तो ऐसा भी पॉसिबल है, इंटेंशनली भी डेटा डिलीट हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि कंप्यूटर्स के अंदर में अगर किसी भी डिवाइस के ऊपर से सेकेंडरी स्टोरेज, आइदर वो हार्ड डिस्क हो या आपका पेन ड्राइव हो, अगर आपने वहां से डेटा को डिलीट किया है, इसका मतलब वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। एक होता क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वहां पे एक मार्क लगा देता है, एक लेवल लगा देता है कि दिस सीट इज वैकेंट, दिस मेमोरी स्पेस इज वैकेंट, बट इन एक्चुअली दैट स्पेस इज नॉट वैकेंट, वो वैकेंट होता ही नहीं है, सिर्फ मार्किंग होती है। और फर्दर क्योंकि वहां पे मार्किंग हो चुकी है कि ये वैकेंट है, तो जब नेक्स्ट टाइम कोई डेटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज की जरूरत होगी तो उसी पार्ट पे इंफॉर्मेशन को रीराइट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि उसी पार्ट पे इंफॉर्मेशन को रीराइट कर दिया गया, तो अब जाके डेटा डिलीट हो गया और डी डेटा आ गया। लेकिन अगर रीराइट नहीं हुआ है उस लोकेशन के ऊपर, तो आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि आपको पता है कि रिकवरिंग टूल्स होते हैं, उनके लिमिटेशंस हैं। अगर उस पेन ड्राइव के ऊपर से मान लो किसी ने सारे डेटा डिलीट कर दी और उसके बाद भी डेटा रिकवर हो सकते हैं, तो वो रिकवर कैसे होते हैं, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि डेटा फिजिकली डिलीट नहीं होता है, वहां से सिर्फ मार्किंग होता है कि यार दिस स्पेस इज रिमूव्ड, दिस इंफॉर्मेशन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट पोजीशन एंड दैट पोजीशन इज फ्री, सो नाउ यू आर फ्री टू स्टोर द न्यू इंफॉर्मेशन। तो ये रीजन है उसके पास कि व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, द एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री एंड द मच स्पेस इज शोन एज द एम्प्टी फॉर यूजर, बट actually this data is not deleted from there. In this case, in the case data gets deleted accidentally or corrupted, there arises a need to recover the data. Recovery of data is only possible if contents or memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data. Data recovery is the process of retrieving deleted, corrupted and lost data from the secondary storage devices. तो क्या है डेटा रिकवरी, क्या है ये समझ में आ गया। डेटा रिकवरी एक प्रोसेस है जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से लॉस्ट डेटा को आप रिट्राइव करते हो। So that is that. There are usually two security concerns associated with the data. One is deletion by some authorized persons or software. These concerns can be avoided by limiting access to the computer system. जैसे कि आपको लगता है कि कोई अनऑथराइज्ड डिलीशन कर सकता है आपके सिस्टम से, तो आप लिमिट कर दो ना उसको,
उसको लिमिट राइट्स दे दो, उसको पासवर्ड दे दो। एक प्रॉपर राइट्स वाले पर्सन ही उस कंप्यूटर से डेटा को एक्सेस करेगा, अदरवाइज कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आप फाइल को इनक्रिप्ट भी कर सकते हो। इनक्रिप्टिंग का भी कंसेप्ट है कि फाइल को इनक्रिप्ट भी किया सकता है अनवांटेड मॉडिफिकेशन से। The other concern related to unwanted recovery of data by unauthorized users or software. एक दूसरा कंसर्न है unwanted recovery किसी unauthorized user software. तो many times we discard our old broken or malfunctioning storage device without taking care of the deleted data. कई बार आप फेंक देते हो, डिलीट नहीं करते हो, आप सोचते हो कि कंटेंट से डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। So if these storage devices fall into the hands of the mischief mongers, है ना, they can easily recover the data from such devices. And this poses a threat of data confidentiality. So this concern can be mitigated by using proper tools. मतलब आप बच सकते हो अगर आप proper tools के थ्रू डेटा को डिलीट कर देते हो before going to destroy and disposing any old or faulty storage device. उसको प्रॉपर वहां से डिलीशन होना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा अवेलेबल है और कोई उसे हैंडल कर सकता है, कोई उसे दे सकता है। हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में अभी तक देखिए आपने हार्डवेयर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज द हार्डवेयर विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, छू सकते हो, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। लेकिन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, मतलब हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए हमें जरूरत होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, और ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड नॉर्मली सॉफ्टवेयर इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स एंड जनरली वी कैन कीप दिस इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्राम इज कंबाइंड टुगेदर टू मेक द सॉफ्टवेयर। बट वन मोर थिंग इज दैट कि एक बेसिक डिफरेंस है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर क्योंकि फिजिकल डिवाइस है जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, बट आप सॉफ्टवेयर को फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, कैन नॉट टच और व्यू, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा को प्रोसेस करने काम में आता है और कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के काम में आता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को अगर आप मिला दें तो आपका कंप्लीट सिस्टम एक तैयार होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हार्डवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, द बोथ आर देयर ऑन इंपॉर्टेंस। तो विदाउट सॉफ्टवेयर you are not able to use your hardware and without hardware you are not going to use your software. तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कहने का अर्थ है कि आपके शरीर में आत्मा है तो आपका शरीर काम कर रही है और अब आत्मा के लिए शरीर चाहिए और शरीर को एक्टिव होने के लिए आत्मा की जरूरत होती है। तो आप कह सकते हो कि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक आत्मा है, एक सोल है, और उसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। हार्डवेयर के बारे में मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हार्डवेयर किसको रेफर्स करता है। हार्डवेयर रेफर्स करता है फिजिकल कंपोनेंट्स को। किसको रेफर करता है हार्डवेयर? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे रैम, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू। ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा दैट मेक्स हार्डवेयर फंक्शनल टू कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आपके कंप्यूटर पे जो सबसे बेसिक हार्डवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर्स के हर एक चीज को कंट्रोल करने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लैपटॉप, आपके डेस्कटॉप, आपके स्मार्टफोन में भी कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे Ubuntu, Windows 7, 10। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए, साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे VLC मीडिया प्लेयर, फोटो एडिटर्स, MS पेंट, ऑफिस, MS ऑफिस, है ना, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत होती है जिसकी मदद से आप कोई खास काम को कर सकते हो। कहता है कि जब कभी भी आप किसी इंफॉर्मेशन को पेन ड्राइव या कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में हो, चाहे इमेज के फॉर्मेट में, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। लेकिन उसी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप प्रिंट कर लेते हो, इमेज को प्रिंट कर लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में बेसिक डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट कॉपी आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं जिसको आप खोल के कभी भी चेंज कर सकते हो, बट हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड शीट होते हैं जिसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैंने आपको भी बताया कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हमारा टॉपिक है नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हमें सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, क्या जरूरत क्या है सॉफ्टवेयर की। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की आत्मा है। इट्स जस्ट लाइक अ सोल। विदाउट सॉफ्टवेयर योर कंप्यूटर इज, you are not able to use your computer does not become so useful and operational। तो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर को ये पता होता है कि भाई
डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उनसे काम लेना है, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन करवाना है, कैसे आपसे इनपुट रिसीव करके सीपीयू को दिया जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करके फिर मेमोरी को दिया जाएगा, फिर आउटपुट को दिया जाएगा। तो ये सारे काम को करवाने की जिम्मेदारी जो होती है वो सॉफ्टवेयर की होती है। और आप यूं कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज ए इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। मतलब कहने का अर्थ है कि आपको स्पीकर से गाना बजाना है तो गाना तो बजेगा स्पीकर से, लेकिन स्पीकर से गाना बजाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी। आप सॉफ्टवेयर की मदद से ही गाना बजा सकते हो। आप वीएलसी, आपको एक सॉफ्टवेयर वीएलसी मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी, आपको विंडोज मीडिया प्लेयर की जरूरत होगी, जिसकी मदद से आप हार्डवेयर को यूज में ले सकते हो। अब depending on the mode of interactions with the hardware functions to be performed, software can be broadly classified into 3 categories। कहता है कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होता है हार्डवेयर से, या जो उसकी फंक्शनलिटी, जो उसके काम है, उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में बांटा गया: सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आईपी के सिलेबस में सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है, जबकि सीएस के सिलेबस में प्रोग्रामिंग टूल्स। तो ये मैं फर्दर डिस्कस करूंगा प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में। आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, a software that provides the basic functionalities to operate a computer by interacting directly with the constitutional hardware। मतलब आप इसको यूं कह सकते हो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डायरेक्ट आपके हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, उसे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। नॉर्मली समझ लो, जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके कीबोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, तो वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रिंटर को कंट्रोल कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की ड्यूटी क्या है? इट्स प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर टू सम और टू द सम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, इन सबको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज द डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिस इज द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर कंप्यूटर। अगर आपके मोबाइल से आज ऑपरेटिंग सिस्टम को डिलीट कर दिया जाए तो आपका मोबाइल यूजलेस हो जाएगा। आपको इच्छा होगी आप अपने मोबाइल को डस्टबिन में डाल दें। इट द सेम हैपन विथ योर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे एक आदमी के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आप कहते हो ना कि आदमी डेड हो गया, द ह्यूमन बीइंग गोइंग डेड। तो ऐसे केस में ठीक ऐसा ही आपके कंप्यूटर के केस में है कि अगर कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम को बाहर निकाल दिया गया तो आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंबाइंड होते हैं, तो एक साथ ही होते हैं वो, कई बार वो अलग अलग होते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड प्रोवाइड्स द एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कई काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर ऑल्सो। ठीक है, आपसे कुछ लेना, हार्डवेयर से कुछ करवाना, हार्डवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना, ये सारी ड्यूटी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देयर आर सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना चाहिए: विंडोज, लिनक्स, मैकिंटोश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, आईओएस। तो ये सारे क्या है? अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम यूटिलिटीज के बारे में कि व्हाट इज द सिस्टम यूटिलिटीज। देखिए, नाम से समझ में आता है यूटिलिटीज। जैसे आप देखते होंगे आपके व्हीकल्स के अंदर एक टूल बॉक्स होता है, उसको यूटिलिटी बॉक्स भी कहते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके अंदर में। आखिर वो क्यों होते हैं? सो दैट्स कि आप अपने व्हीकल्स के मेंटेनेंस का ख्याल रख सके। कोई ढीला हो गया, कोई नट स्क्रू टाइट करना हो तो आप उसको टाइट कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है फॉर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। The same is happened with the system also. So there are some different software, and that software is called system software, and that is used for the maintenance and configuration of the computer system. Maintenance and configuration of the computer system is called system utility. उसको हम क्या कहते हैं? System utility कहते हैं। Some system utilities are shipped with the operating system.
फॉर एग्जाम्पल डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, कुछ तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ जाते हैं, कुछ आपको अलग से लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए डिफ्रेगमेंटेशन, एक यूटिलिटी है जिसका नाम है डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। ये डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा टूल है, जैसे देखो कंप्यूटर्स के अंदर जब इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहा होता है ना, तो उसका स्टोरेज लोकेशन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो नॉन कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर उसको क्या करना होता है, अब नॉन कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस पे लेके जाना होता है, मतलब अलग अलग स्कैटर्ड वे में इंफॉर्मेशन होते हैं, तो उन सबको वापस लाना होता है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। फॉर्मेटिंग मतलब सिस्टम को फॉर्मेट करने के लिए, रीस्टोर, सिस्टम को रीस्टोर, मतलब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया और सडनली आपका सिस्टम आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो। Another set of utilities that those which are not shipped with the operating systems but are required to improve the performance system, antivirus software, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके सिस्टम के साथ नहीं आते हैं बट आपको उसकी जरूरत होती है। डिस्क क्लीनर, डिस्क कंप्रेशन, देखिए ये एंटीवायरस और डिस्क क्लीनर तो आजकल आप स्मार्टफोन में यूज करने लगे हैं मेमोरी को क्लीन करने के लिए, ठीक है। अब आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम क्या है, तो डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। अब जरा सा इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, देखिए आप तो हो यहाँ पे, आपके लिए एक इंटरफेस डिजाइन हो गया, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स के थ्रू कनेक्ट करते हो, आप यूटिलिटीज के साथ कनेक्ट हो सकते हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम देखो यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है और डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर से काम ले लेता है। तो ये जो जितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, दिस ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दिस ऑल आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, एज द नेम सजेस्ट, मतलब किसी डिवाइस को कंट्रोल करना, किसी पर्टिकुलर डिवाइस की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना, मेमोरी में स्टोरेज करना है, मेमोरी से रिट्राइव करना है, उसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर होगी। इनपुट डिवाइस से इनपुट लेना है, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देना है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होगी। प्रिंटर से प्रिंट करवाना है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर है। आप देखते हो कई बार कहते हैं ना आपके स्पीकर से आवाज नहीं आ रही होती है, तो आपको कहा जाता है कि साउंड ड्राइवर इंस्टॉल कर लो, साउंड का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, ऑडियो ड्राइवर्स नहीं होंगे उसके ऊपर। तो ये क्या है, दिस ऑल आर द डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर इज कम्स इन अ डिफरेंट वेज एंड इट इज अवेलेबल विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। समटाइम इट्स कम विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड समटाइम यू हैव टू download it separately or install it separately. And the main duty and main responsibilities of device driver to control the different devices. ठीक है, स्कैनर के लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा, बारकोड रीडर के लिए अलग से डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा, तो हर किसी के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा। कई बार डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेस का काम करता है बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। कई बार आप डायरेक्ट डिवाइस ड्राइवर से कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिवाइस ड्राइवर को यूज कर लेते हैं। तो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गया कि तीन तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एक तो हमारा सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और एक डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मींस द सॉफ्टवेयर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। आपको पेंटिंग करनी है, पेंट ब्रश चाहिए, आपको वर्ड टाइप करना है, वर्ड प्रोसेसर चाहिए, आपको कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट की बात कर रहे हो, आपको पीपीटी बनानी है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको फोटो एडिटिंग करनी है तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर चाहिए। तो आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब फोटोशॉप की सॉफ्टवेयर जो है वो फोटोशॉप का ही काम करेगा, तो लिमिटेड टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर दैट इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर वर्क दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, किसी खास पर्पज को पूरा कर रहा होता है। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का सोल्यूशन करेगा, वो गाना नहीं बजा सकता है। गाने के सॉफ्टवेयर में आप एडिटिंग का काम नहीं कर सकते हो, वो गाना बजाने के काम में आएगा, ठीक है। अब उसमें आप वर्ड प्रोसेसर को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वन इज कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, अनदर इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर अ जनरल कस्टमर, मतलब बिगर ऑडियंस को ध्यान में रख के, एक जनरल कंसेप्ट को ध्यान में रख के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसको हर कोई यूज कर सकता है। अब देखो ना, ओपन ऑफिस की बात कर लो, लिब्रे ऑफिस की बात कर लो, कैलकुलेटर की बात कर लो, जिम्प की बात कर लो, मोजिला वेब ब्राउजर की बात कर लो, फोटोशॉप की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर लो, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। ये किसी खास कस्टमर को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया है, ये नॉर्मल कस्टमर को ध्यान में रख के बनाया गया है। ये ऐसा चीज है जो कोई भी यूज कर सकता है, किसी को भी इसकी जरूरत हो सकती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस दिए हुए हैं, जरा सा उसको देख लीजिएगा। इन अदर वर्ड, द यूज ऑफ कंप्यूटर इज पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहता है कि वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर, मतलब कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम तो हो बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो फिर आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं, बस यही है, झुंझुना हो गया, आप बजाते रहो उसको। मीन्स आप खोल लो, एमएस पेंट में काम कर लो, वर्ड पैड में काम कर लो, नोट पैड में काम कर लो, बट इफ यू वांट टू वर्क फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस,
आपने किसी खास पर्पस के लिए अपने कंप्यूटर को परचेज किया है तो आपको किसी खास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी और उसे हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर या दूसरा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कई बार आप देखते हो कि कंपनी के अंदर में लोग खुद से बिलिंग करते हैं, खुद से बताते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर की। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाओ तो उसका बिलिंग सिस्टम में देखो तो वो बिल स्पेशली उसके लिए बनाया गया, उसी का नाम हम लिखा होता है। इसको क्या कहते हैं? कस्टमाइज। किसी खास कस्टमर के लिए रेलवे के सॉफ्टवेयर को देख लो ना, जहां रेलवे रिजर्वेशन का काम होता है वो रेलवे के द्वारा कंट्रोल होता है, रेलवे के लिए बनाया गया। तो किसी ऐसे कस्टमर को ध्यान में रख के अगर कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, वो अकाउंटिंग को ध्यान में रख के बनाया गया। स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर स्कूल को ध्यान में रख के बनाया गया। तो खास कस्टमर, अब स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज एक शॉपकीपर क्या करेगा बताओ? उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके पास। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को तो स्कूल में भी जरूरत पड़ सकती है ना। अकाउंटिंग तो एक जनरल सॉफ्टवेयर हो गया जो हर किसी को जरूरत हो सकती है, लेकिन मान लो किसी डॉक्टर का सॉफ्टवेयर है तो डॉक्टर के काम आएगा, वो मैनेजर के काम नहीं आ सकता है। बैंक का सॉफ्टवेयर बैंक वाले के लिए, क्लोथ का सॉफ्टवेयर क्लोथ वाले के लिए है। तो इसको क्या कहते हैं? हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं, मतलब कस्टमर के हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसके बाद सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी और है, प्रोप्राइटरी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये प्रोप्राइटरी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? देखिए दुनिया में लोगों को ना हर चीज फ्री में लेने की भी आदत हो गई, तो इसके लिए फ्री सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। लोग सोचते हैं कि सोर्स कोड भी मुझे मिल जाए, तो उसके लिए ओपन सोर्स का भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। पर्पस कुछ नहीं है, पर्पस है ज्ञान को बांटना, पर्पस है नॉलेज को बांटना, पर्पस है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। कुछ लोग कैपेबल हैं तो यूज कर सकते हैं, कुछ लोग कैपेबल नहीं है तो वो यूज नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी सॉफ्टवेयर दिया गया। अब 3 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, एक होता है 2 तरह का कह लो, एक होता है प्रोप्राइटरी और दूसरा होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, वो किसी खास कंपनी का सॉफ्टवेयर है और आपको वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो पब्लिक के लिए है, जो पब्लिक फ्रीली यूज कर सकता है, जिसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें सोर्स कोड अवेलेबल होंगे, ऐसा सॉफ्टवेयर को फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉश के नाम से हम जानते हैं। ये फॉश को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे उबंटू है, उबंटू एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्रीली अवेलेबल है, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन हो गया आपका, लिब्रे ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस हो गया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, MS ऑफिस अगर यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। मोजिला फायरफॉक्स फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जो फ्रीवेयर है। जो फ्रीवेयर है मतलब उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, उसके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। सोर्स कोड आप उसको डाउनलोड तो कर सकते हो, यूज तो कर सकते हो, बस सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम फ्रीवेयर कहते हैं, जैसे स्काई, एडोब रीडर। तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसको खास वेंडर से आपको परचेज करना पड़ता है, किसी खास वेंडर के साथ आपको लेन कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, वहां पे आप अगर नहीं लेते हो तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर के नाम से आ जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टैली, कोई खेल, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर सारे हैं, तो वो सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टर्म एंड कंडीशंस आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने जैसा लाइसेंस लिया उस हिसाब से आप उसे यूज कर पाओगे। तो दिस इज अबाउट द चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर क्लास 11th IP एंड साइंस। IP का सिलेबस यहाँ खत्म हो जा रहा है चैप्टर 1 का। साइंस के लिए अभी 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं जो मैं फर्दर डिस्कस करूंगा। ये समरीज हैं, जो समरी आप देख सकते हो कि कंप्यूटिंग डिवाइस ऑल्सो रेफर्ड एज द कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू जनरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस समरी को देख लेना। ये कुछ एक्सरसाइज हैं। एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए अगर आपको किसी को लगता है कि एक्सरसाइज डिस्कस करना है तो आप प्लीज कमेंट करें, मैसेज करें, तो मैं आपके साथ एक्सरसाइज भी डिस्कस करूंगा। और एक्सरसाइज डिस्कशन माइट बी पॉसिबल आपके लिए फ्री अवेलेबल नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।